Hello my dear lovely students, my small little tiny dots. How are you all? I hope you all are well fit, healthy, wealthy and well. Okay, welcome back to your online classes my dear students. So, anything new in this class? Yes, there is something new. What new? That today we are going to start a new lesson. Which lesson do you know? I also don't know. So don't worry, I will say you. Today we are going to start our chapter number 4. And what is the name of the lesson? The name of the lesson is A Visit to a Zoo. Now what is the name of the lesson? The name of the lesson is A Visit to a Zoo. Now what do we mean by zoo, my dear students? Do you know? Zoo means where people are keeping animals. Which kind of animals they keep? See, some keeps elephant, some keeps tiger, some keeps monkey, every kind of animal, zebra, peacock, like this. Okay, so in this chapter we are going to see in detail how people leave the animals in the zoo, how they. Okay my dear students, so without wasting much of our time, we will start the lesson. But before starting the lesson, let me tell you one thing. When I will read the lesson, what you will do? You will look here and there, right? No. When I will read the lesson, you will keep your finger on the line. Okay? Why you will keep your finger on the line? You will keep your finger on the line because this will help you to know that where I am reading in the lesson. Okay, this will help you to know that where teacher is reading in the lesson. Okay, so you will keep your finger on the line and you will see where I am reading. Okay my dear students, now without wasting much of our time, come we will start our today's chapter. Okay, come. Okay my dear students, so without wasting much of our time, come we will start our today's chapter. See your page number 28. Keep your finger on the line. Chapter number 4, A Visit to a Zoo. Now, I am fond of watching the monkeys and their strange actions. Sometimes they swing from a nearby tree or electric wires. Sometimes they jump from the roof of one house to the other. Now, what is given in this lesson? That the writer is watching the monkeys. Monkeys means bandar, and their strange action. The action what they are doing, they are jumping from one tree to another tree, from one house to another house, from one wall to another wall. They jump. Okay. So sometimes they swing nearby tree or electric wires. Now swing means कभी कभी मंकी झूला झूलते हैं ना इलेक्ट्रिक वायर से, झाड़ की टहनी से. ठीक है, तो उनको मंकी पसंद है. और मंकीज जो एक्शन करते हैं, कौन से एक्शन? जैसे एक जगह से दूसरी जगह जंप करना, एक वॉल से दूसरे वॉल पे, एक झाड़ से दूसरे झाड़ पे, एक जगह से दूसरी जगह पे, अलग अलग टाइप से वो लोग जंप करते. ओके. समटाइम्स they pounce on the bags of a passerby and give a treat. I like to listen their strange sounds. I enjoy to mimic their actions and sounds. Now what writer is saying? That writer enjoyed the pounce of the bag of a passerby and give a treat. He likes to listen the strange sounds. He also enjoy the mimic their actions and sounds. Means राइटर ये बोल रहा है कि राइटर को मंकीज बहुत पसंद है. जिस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, एक ट्री से दूसरे ट्री, फिर वो वायर पे जो झूला झूलते हैं उस पे जो स्विंग करते हैं, वो राइटर को बहुत पसंद है. और राइटर उनकी मिमिक्री करता है. मिमिक्री करना मीन्स वो मंकीज की आवाज़ निकालते हैं. मंकी लोग आवाज़ करते हैं ना, साउंड्स क्रिएट करते हैं, और वो जो एक्शंस करते हैं वो राइटर को बहुत पसंद है. आई हैव अ पेट डॉग. आई से बो वो विथ हिम. व्हेन ही रन्स आफ्टर अ कैट आई लाफ. मीन्स राइटर इज हैविंग अ पेट डॉग. मतलब लेखक के पास एक पेट डॉग है. पेट डॉग मीन्स पालतू कुत्ता.
जब वो उसे बोलता है बाउ वाउ विथ हिम ही रन्स आफ्टर अ कैट। मतलब जब राइटर बाउ वाउ बोलता है तो वो डॉगी क्या करता है, डॉगी कैट के पीछे दौड़ने लगता है। ओके, और ये सब देख के राइटर बहुत ज़्यादा ही हंसने लगता है। ओके, व्हेन द नेबर्स कैट कम्स टू माई हाउस शी पॉसेस एट द गेट एंड सेज म्याऊ म्याऊ। मतलब जब नेबर्स मीन्स पड़ोसी की बिल्ली, जब पड़ोसी की बिल्ली मेरे घर के मतलब राइटर के घर के गेट के पास आके म्याऊ म्याऊ बोलती है, सो आई रिपीट म्याऊ म्याऊ एज टू परमिट हर टू एंटर। मतलब तो राइटर क्या करता है, जब कैट म्याऊ म्याऊ बोलती है तो राइटर भी म्याऊ म्याऊ बोलता है। क्यों बोलता है राइटर म्याऊ म्याऊ? उसको परमिट करने के लिए। परमिट मीन्स उसको परमिशन देने के लिए कि तू हमारे घर में एंटर कर सकती है। When I go to my friend's house, I love to talk with her parrot. Now, when I go to my friend's house means जब राइटर अपने फ्रेंड के घर जाता है तो उस फ्रेंड के पास भी एक पेट रहता है। कौन सा पेट रहता है? पैरेट। तो जब राइटर उसके फ्रेंड के घर जाता है तो उन्हें क्या पसंद है राइटर को, कि फ्रेंड के पेट के साथ खेलना, बात करना, मतलब पैरेट के साथ खेलना और बात करना। आई नेवर फॉरगेट टू गिव इट अ चिल्ली एंड वॉच इट ईटिंग विदाउट अ क्राई। मीन्स राइटर जब फ्रेंड के घर पे जाता है तो वो साथ में क्या लेके जाता है? चिल्ली। चिल्ली मीन्स व्हाट? चिल्ली मीन्स मिर्ची। किसे कहते हैं हम लोग चिल्ली? मिर्ची को। ग्रीन मिर्ची होती है ना, उसको। तो वो किस लिए लेके जाता है राइटर ग्रीन मिर्ची? पैरेट के लिए। एंड वॉच इट ईटिंग विदाउट अ क्राई, मतलब पैरेट को जब वो मिर्ची देता है तो उसे कंटिन्यूस देखता रहता है कि पैरेट कैसे बिना रोए वो मिर्ची को खा लेता है। क्योंकि हम जब मिर्ची खाते तो हमें तीखा लगता है और हम रोना चालू कर देते, बट पैरेट ईट द चिल्ली विदाउट एनी क्राई। पैरेट बिना रोए वो चिल्ली को खा लेते हैं। सो when I went to my uncle's house at New Delhi, I asked my cousin to visit the zoo with me. He also a funny fellow like me. He has seen the zoo twice. Even he was keen to go third time. Means when the writer went to uncle's house at New Delhi, means जब राइटर न्यू दिल्ली में अपने अंकल के घर गए तो उसके अंकल को वो बोला कि वो उसे जू में लेके जाए। और उसके अंकल भी एक फनी फेलो है। क्यों फनी फेलो है? क्योंकि वो ऑलरेडी जू में 2 बार जा चुके हैं। फिर भी राइटर के बोलने के बाद वो थर्ड टाइम जू जाने के लिए रेडी हो गए। ओके, नाउ हियर वी रीच द जू एट 10 AM. We bought the tickets and entered. Means writer and uncle went to zoo at 10 AM. राइटर और अंकल कितने बजे जू गए? 10 AM. We bought the tickets and entered. मतलब जू में एंटर करने के लिए उनको टिकट लेनी पड़ती है, तो उन लोगों ने टिकट लिया और जू में एंटर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेंट टू द वाइल्ड एनिमल्स सेक्शन। नाउ फर्स्ट मतलब जू में एंटर करने के बाद फर्स्ट वो लोग कौन से सेक्शन में गए? वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स मीन्स द एनिमल्स हु किल द अदर एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स का मतलब ये होता है जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को किल करके उसको खा जाते हैं। दे आर सेड टू बी वाइल्ड एनिमल्स। द जिराफ इज सो टॉल एज टू रीच द हाइट ऑफ अ ट्री. He had a long neck and long long legs. Now they have seen giraffe. Giraffe means seer. Giraffe. So giraffe has long neck and long legs. जिराफ को लंबी गर्दन और लंबे पैर होते हैं। जिराफ बहुत ज़्यादा लंबा होता है। He had a long neck and long legs. He was eating the leaves of the nearby tree. Next we saw a zebra. जैसे ही उन्होंने पहले किसको देखा? जिराफ को। जैसे ही उन्होंने जिराफ को देखा तो जिराफ क्या कर रहा था? जिराफ लीव्स खा रहा था पेड़ के, ठीक है। और जिराफ को देखने के बाद वो किसको देखे? ज़ीब्रा को। He looked like a mule having strips. Now जिराफ उनको कैसा लगा?
म्यूल की तरह, जिसको बहुत सारी लाइंस है, वाइट लाइंस है और ब्लैक लाइंस है। ओके, देन वी वेंट टू सी लायंस, टाइगर्स एंड लेपर्ड्स। अब जीब्रा और जिराफ को देखने के बाद वो लोग कहाँ गए? दे वेंट टू सी द लायन, टाइगर एंड लेपर्ड्स। मतलब जीब्रा और जिराफ को देखने के बाद वो लायन, टाइगर और लेपर्ड को क्या बोलेंगे? चीता। तो इनको देखने के लिए गए। दो पीपल फियर लायंस एंड टाइगर्स, दे वेंट टू लिसन टू द रोर्स। पता है सब लोगों को कि हमें डर लगता है लायन, टाइगर और चीता से, फिर भी इनकी आवाज़ सुनने के लिए, इनकी दहाड़ सुनने के लिए पीपल जू में आते हैं। द लायन हैज़ अ प्लेन पैल। लायन के पास क्या है? एक येलो कलर का कलर है, उस पर ब्लैक कलर की लाइंस है। येलो कोट है, मीन्स येलो कोट मीन्स उसके पास पूरी उसकी बॉडी येलो कलर से कवर है। द टाइगर हैज अ ब्लैक स्ट्रिप येलो बॉडी। लेपर्ड हैज लेपर्ड्स एंड चीतास हैव ब्लैक स्पॉटेड स्किन। नाउ टाइगर्स की येलो कलर की बॉडी है और उसे ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स है। चीता में येलो कलर का कलर है पूरा और ब्लैक कलर के स्पॉट है स्किन के ऊपर। द स्पॉट्स इन द leopards appeared in clusters while the cheetah has individual spots। मतलब चीता और लेपर्ड में अलग अलग टाइप के, चीता में ब्लैक स्पॉट है और लेपर्ड में लस्टर्स की तरह स्ट्रिप है, मतलब लाइनिंग्स है। The spot in the leopard appears in clusters while the cheetah has individual spots. All the four belongs to the cat family. Now all the four means चीता, लेपर्ड, लायन एंड टाइगर बिलोंग्स टू कैट फैमिली। मतलब ये चारों जो है कौन सी जाति में बिलोंग करते? कैट की फैमिली में बिलोंग करते। दे आर लार्ज कैट्स बट नाउ द चीता कैन नॉट बी सीन एनी मोर। ये सब क्या है? बहुत बड़ी बड़ी कैट्स है, बट चीताज, जो चीता है अभी ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलते। क्यों देखने के लिए नहीं मिलते? क्योंकि उनका जो है किलिंग, मतलब चीता को मारना इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि चीताज अब ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलते। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सी योर पेज नंबर 29 हियर। द लायन वॉज अ नेशनल एनिमल टिल 17 November 1972. Since then, the tiger has been chosen as a national animal. Now, my dear students, पहले हमारा जो नेशनल एनिमल था वो कौन था? लायन था। कौन से इसमें ईयर में? 17 November 1972। मतलब 1972 में हमारा नेशनल एनिमल कौन सा था? लायन था। बट कुछ सालों बाद द टाइगर हैज़ बीन चोजन एज अ नेशनल एनिमल। मतलब कुछ सालों के बाद हमारा जो नेशनल एनिमल है उसको टाइगर को क्रेडिट दे दिया गया। देन वी सॉ सम एप्स लाइक गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन्स एंड बबून्स। नाउ कैट्स की फैमिली को देखने के बाद हम लोग कहाँ गए? अब चिंपैंजी को देखने, गोरिल्लास को देखने गए। गोरिल्लास आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फेरोरियस। नाउ गोरिल्लास, यू नो गोरिल्ला, किंग कॉन्ग, आपने किंग कॉन्ग की मूवी देखी है ना, उसमें जो एनिमल है उसको बोलते हैं गोरिल्ला। गोरिल्लास बहुत बड़े रहते हैं और बहुत गुस्से वाले रहते हैं। ओके, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फिरोरियस। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। दे कैनॉट बी ट्रेंड और केप्ट एज पेट्स। वो इतने बड़े रहते हैं कि उनको पेट्स की तरह जू में नहीं रखा जाता है, वो बहुत डेंजरस होते हैं। चिंपैंजीज आर इंटेलिजेंट एप्स रिसेंबलिंग मैन मोर देन द अदर एप्स। नाउ चिंपैंजी बंदर की जाति का ही एक स्पेशीज है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ओके, The young chimpanzees can be trained to do many things, even to wear clothes and eat at the table. Now chimpanzees इतने clever होते हैं कि उनको ट्रेन करा जा सकता है कि आप ड्रेस पहनो, टेबल पे बैठ के खाना खाओ। वो इतने इंटेलिजेंट होता है कि वो सब बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। एप्स, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एप्स? एप्स का मतलब क्या? एप्स मंकी का ही एक प्रजाति है। जैसे चिंपैंजी हो गया, किंग कॉन्ग हो गया, मंकी की ही प्रजाति है ना, वैसे एप्स भी मंकी के ही प्रजाति का एक वो है, प्रजाति है।
Unlike monkeys do not have tails, their arms are long. मतलब monkeys को जब तक पूंछ नहीं रहती है, उनके जो आर्म्स है, मतलब उनके जो हाथ है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग्स रहते हैं, मजबूत रहते हैं. The apes are the ancestors of human race. The primitive man used to walk on his 4 legs, but gradually he learned to use 2 as arms and 2 as legs. Means apes वो प्रजाति है, इंसान बनने से पहले मंकीज की जो जाति है वो पहले एप्स बनती है. क्यों? क्योंकि मंकीज पहले अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों पे चलते थे, बट एप्स की जो प्रजाति है वो सिर्फ अपने दोनों पैरों पे चलती है, अपने हाथों को वो ऊपर उठा लेते हैं. बट ग्रेजुअली ही लर्न टू यूज आर्म्स एंड 2 लेग्स. ना अभी उन लोगों ने अपने इंटेलिजेंट की बेसिस पे वो अपने पैर को सिर्फ चलने के लिए यूज करते हैं और हाथों को अपने दूसरे काम करने के लिए. ओके. वी ऑल्सो सॉ कैंगरूज. It has a little outer pouch in its belly. Its cubs crouch within this pouch. मतलब अब monkeys को देखने के बाद वो लोग कहाँ गए? Kangaroos को देखने. Kangaroos they have a little outer pouch. Pouch means kangaroos के स्टमक पे एक पाउच, डोरेमोन का पाउच रहता है ना, उसकी पॉकेट रहती है ना. हाँ, सेम उसी तरह कांगरूज को भी डोरेमोन की तरह एक छोटा सा आउटर पाउच रहता है, जो पाउच में वो लोग अपने छोटे से प्यारे से क्यूटी लिटी बेबीज को रखते हैं. ठीक है. इट्स क्यूब्स क्रोच विद इन इट्स पाउच. इसका मतलब है कि वो पाउच में वो अपने छोटे से बेबीज को रखते हैं, कैंगरूज अपने बेबीज को रखते हैं. देन वी सॉ रैबिट्स, डियर्स, एलिफेंट्स, बियर्स एंड राइन्स. मतलब अब मंकीज को और कैंगरूज को देखने के बाद वो लोग किस किस को देखे? रैबिट्स को, डियर को, एलिफेंट को, बियर्स को और राइनोसोरस को. ओके. नाउ नेक्स्ट वी सॉ मैनी काइंड्स ऑफ वाटर एनिमल्स, फिश, फ्रॉग, टर्टल एंड क्रोकोडाइल. मतलब ये एनिमल्स को देखने के बाद उन्होंने और वाटर एनिमल्स को देखे, जैसे फिश, फ्रॉग, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स. The elephant is the largest land animal, but the largest animal in the air, land and water is whale. देखिए, धरती पे सबसे बड़ा एनिमल कौन सा माना गया है? एलिफेंट को. बट लेकिन सबसे बड़ा एनिमल इन एयर, लैंड एंड वाटर, मतलब सबसे बड़ा एनिमल जो हवा में, जमीन में और पानी में, वो है व्हेल. व्हेल इज अ काइंड ऑफ फिश. व्हेल एक तरह की फिश है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है. इट हैज़ बिग एज द साइज ऑफ 10 एनिमल्स एलिफेंट्स. मतलब व्हेल का जो साइज है वो 10 हाथियों को बराबर है. एक व्हेल का साइज 10 हाथियों के बराबर है. देयर वॉज नो व्हेल इन दिल्ली जू. यू कैन सी इट ओनली इन द सी. मतलब व्हेल का जो साइज है वो इतना बड़ा है कि वो दिल्ली जू में दिखाई ही नहीं दिया, ना ही कोई और जू में उसे रखा जाता है. क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी है. सो व्हेल्स आर ओनली सीन इन द ओशंस. मतलब व्हेल्स को समुद्र में ही पाया जाता है. देन वी सॉ द बर्ड्स ऑफ मैनी कलर्स, मैनहैंस, पैरट्स, रिबन्स, रिनॉन्स, डक्स, स्वैन्स एंड पीकॉक्स. अब पानी की जानवरों को देखने के बाद हम लोगों ने बहुत ही अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के बर्ड्स देखे. बर्ड्स मतलब पंछी. ओके. It has many golden spots on its feather, so it is called the bird of 1000 eyes. मतलब उसमें से एक बर्ड ऐसा था जिसके पंख पे बहुत ही ज़्यादा गोल्डन स्पॉट्स थे. गोल्डन स्पॉट्स मीन्स गोल्डन कलर के पैचेस थे. The peacock is also a national bird. We also saw flightless big birds, ostrich. Now जैसे कि peacock यानी कि पीकॉक, मोर हमारा नेशनल बर्ड है, वैसे ही हमने बहुत सारे बर्ड्स को जू में देखे, जैसे ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच भी एक टाइप का बर्ड है. इट कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन रन ऑन इट्स लेग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर. मतलब ऑस्ट्रिच ऐसा बर्ड है, वो उड़ नहीं सकता है, बट ही कैन रन. वो उड़ नहीं सकता हो तो क्या हुआ, वो भाग सकता है. उसके लेग्स की स्पीड इतनी है 60 किलोमीटर्स पर आवर. मतलब
60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो भाग सकता है, इतना स्ट्रांग और फास्ट है। ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, मीन्स ऑस्ट्रिच पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट बर्ड है। वी कुड नॉट फाइंड पेंगुइन्स इन द जू। पेंगुइन्स ऐसे एनिमल्स बर्ड्स है पेंगुइन्स ऐसे बर्ड्स है जो जू में नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे जगह पे रहते। ओके, इट इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड बट इट कैन स्विम इन द वाटर इन ग्रेट स्पीड। मतलब पेंगुइन्स ऐसे बर्ड है जो उड़ नहीं सकते बट बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो पानी में तैर सकते हैं। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द ओशन नियर ऑस्ट्रेलिया। पेंगुइन्स ज़्यादातर ओशन यानी समुद्र में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के। कौन से? ऑस्ट्रेलिया के। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल टर्न द पेज। नाउ वी विल सी हियर, वी टर्न बैक टू होम इन द इवनिंग। ऑल द वे वी टॉक अबाउट द एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब ये सब बर्ड्स जानवर देखने के बाद जू में तो राइटर मतलब लेखक कहाँ चलने लगे? अपने वापस घर में आने लगे। एट डिनर वी वेर बिजी फ्रेज द एनिमल्स एंड द मैनेजमेंट एट द जू। मतलब डिनर मतलब रात के खाने के टाइम हम यही बात कर रहे थे कि जू के जितने भी आदमी हैं मतलब मैनेजमेंट है, उन्होंने वो सारे एनिमल्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाल के उनकी देखभाल कर रहे थे। The wild animals look beautifully at first sight, so people became curious. They went to watch them closely. मतलब लोगों को वो इतने अच्छे लगे कि उनसे रहा नहीं गया कि वो उन्हें पास में जाके और अच्छी से देख सके। Okay, my dear students, here we end our today's chapter. Okay, my dear students, here we have completed our lesson number 4. Okay, so what we have learned in this lesson? We have learned that in the zoo the animals are kept very safely and securely. Okay, we can go anytime at the zoo and we can watch all these animals. Okay, if you have any problem related to the lesson, you can ask me. See, my dear students, the notes of this lesson I will send you in the form of PDF. मतलब ये लेसन के जो नोट्स है मैं उसका PDF बना के आपको सेंड कर दूंगी। ओके, सो इट्स द टाइम टू टेक अ लीव। So I'll see you in the next video. Till that time, stay safe, stay home, stay healthy. Don't disturb your parents. Don't trouble your parents. Okay, I'll see you in the next video. Till that time, bye bye.